तो आज हम डिस्कस करते हैं वन ऑफ द ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज विच इज द बुल कॉल स्प्रेड. नाउ हाउ डू यू क्रिएट अ बुल कॉल स्प्रेड? तो फर्स्टली टू क्रिएट अ बुल कॉल स्प्रेड इट इज अ टू लेग स्प्रेड स्ट्रेटजी. सो बेसिकली आपको एक ATM ऑप्शन को बाय करना है और एक OTM ऑप्शन को सेल करना है. तो लेट्स सी, अगर 36,050 पे लेट्स से बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग राइट नाउ. सो द एट द मनी स्ट्राइक इज 36,000. द इन द मनी इज 35,900 and the 1, 2 and 300 are the OTM strikes. So what we will do is, to make a bull call spread, we will buy a at the money call option and we will sell an OTM call option. So basically you can also buy a ITM option instead of an OTM option. So you can also go with 35,900. But मैंने एक 36,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया है एंड 36,300 का एक कॉल ऑप्शन सेल किया है. सो आई हैव बॉट दिस एंड आई हैव सोल्ड दिस. तो ये एक बुल कॉल स्प्रेड बन गया है. नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज अ स्प्रेड. So spread is the difference between the higher and the lower strike price. So basically the higher strike price is 36,300 and the lower is 36,000. So the difference is of 300. So basically this is the spread. Now let's see what is the maximum loss in bull call spread. So the net debit of strategy is the maximum loss. So अब ये net debit क्या है? तो नेट डेबिट इज द प्रीमियम पेड फॉर लोअर स्ट्राइक माइनस द प्रीमियम रिसीव फॉर हायर स्ट्राइक. तो आई हैव पेड फॉर द लोअर स्ट्राइक. तो मैंने 36,000 के लिए 329 पे किया है एंड मुझे लोअर स्ट्राइक के लिए प्रीमियम रिसीव हुआ है. सॉरी, मुझे हायर स्ट्राइक के लिए प्रीमियम रिसीव हुआ है. सो द हायर स्ट्राइक इज 36,300. सो आई हैव paid 329.40 and I have received around 162.50. So net 166, that is the net debit. So now let's see what is the maximum profit. So the maximum profit is the spread minus the net debit. So मेरा spread है 300. So this is the spread minus my net debit. My net debit is 167. So basically 300 minus 167, that is 133 into my lot size, let's say 25 for bank nifty. So this is the maximum profit I can have and the maximum loss is net debit. So this is the net debit. So the maximum loss is 167 जो कि मेरा नेट डेबिट है. तो 167 into 25 will be around 4173 rupees. So this is how you can calculate the maximum profit and the maximum loss. Now this is the payoff diagram. We have already discussed how to calculate these maximum profit, the maximum loss and the break even. Now let's see an example. So let's say अभी on the 1st of December, this is 1st of December, my view was that bank nifty is going to stay above 36,000. So I am bullish on bank nifty. So let's say I entered a trade somewhere here when the bank nifty was trading around 36,167. So what I did is I did not buy the at the money option. मैंने एक in the money option buy किया which was 36,000 and मैंने एक OTM which is 36,300. मैंने 36,300 का OTM call option sell कर दिया. तो this is how I made a bull call spread. So let's go ahead. Now see, I bought a 36,000 call for 330 rupees. And I sold a 36,300 call for 162 rupees. So मैंने
8,000 plus 18,500 which is around 26,000, but the final margin required is only around 21,000. So for bull call spread you require 20 to 30,000 margin. आपको उससे ज़्यादा मार्जिन नहीं लगेगा. नाउ लेट्स सी, ये मैंने बाय और सेल किया है. दिस इज़ माई मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द ब्रेक इवन. सो 36,167 दिस इज़ माई ब्रेक इवन. सो लेट्स से मेरा टारगेट है फॉर बैंक निफ्टी दैट बैंक निफ्टी इज़ गोइंग टू गो अप. तो लेट्स से बैंक निफ्टी अगर 36,365 चला गया तो आई विल बी इन द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 3,328. नाउ लेट्स सी अगर वो ऊपर नहीं जाता है तो एंड इट स्टेज एट द ब्रेक इवन. तो लेट्स से कि बैंक निफ्टी ऊपर नहीं गया एंड एक्सपायरी के दिन वो 36,167 जो कि मेरा ब्रेक इवन है वो वहीं पर रहा. सो आई विल बी इन अ ब्रेक इवन दैट इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस. नाउ लेट्स सी अगर बैंक निफ्टी 36,300 चला गया. सो वो ऊपर नहीं गया. लेट्स से 36,300 पर ही है बैंक निफ्टी. दिस इज द स्ट्राइक विच आई सोल्ड. स्टिल आई विल बी इन अ प्रॉफिट बिकॉज ऑन द एक्सपायरी डे इट एक्सपायर्ड अबव माई ब्रेक इवन. ओके, नाउ लेट्स से वो मैंने मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाया बुल कॉल स्प्रेड का, मैंने वो नेक्स्ट डे विच वॉज ऑन द 2nd of December, दिस वॉज द एक्सपायरी डे. तो लेट्स से कि मैंने एट दिस पॉइंट मैंने बुल कॉल स्प्रेड बनाया. आई मेड बुल कॉल स्प्रेड समवेयर हियर. नेक्स्ट डे द मार्केट वेंट अप टिल 36,500 then again came down and closed at 36,535. So what will happen? So next day the 36,000 call went up from 330 to 507 rupees and the strike which I sold, which is 36,300, I sold it at 162.5 and it went up till 207. So I got the maximum profit which is 3,328. So bull call spread में you can trade intraday or you can hold it till expiry also. So even if you hold it till expiry you can get the maximum profit which is 3,328. You don't have to worry about anything, just it should be well above your break even. Now let's take an example. So I took an trade here, somewhere here. I thought that bank nifty is taking a good support at 36,160 levels and the next support was as 36,000. So I sold it. I sold, मैंने ये in the money strike sell किया and एक 36,300 जो कि एक OTM strike है somewhere here, ये मैंने एक OTM strike sell कर दिया 36,300. So मैंने ये ऑप्शन बाय करने के बाद बैंक निफ्टी नीचे गया फ्रॉम 160 टिल 3640. सो अराउंड 120 पॉइंट्स का फॉल आया बैंक निफ्टी में. तो अगर मैंने नेकेड ऑप्शन बाय किया होता तो मेरा 50 to 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता अभी तक. बट मैंने एक बुल कॉल स्प्रेड बनाया है तो मेरा प्रॉफिट भी कम होने वाला है, बट मुझे बिना स्टॉप लॉस लगाए आई डोंट हैव टू वरी. सो अगर वो 36,000 ब्रीच करता तो मैं उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करता या फिर मैं उसको एग्ज़िट कर देता कुछ लॉस में, बट इट डिड नॉट ब्रेक दैट और वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया. तो इट गिव अ गुड मोमेंट आफ्टर दैट. सो नाउ लेट्स सी, ये 36,000 का कॉल का 5 मिनट्स में चार्ट है एंड ये 36,300 का 5 मिनट्स में चार्ट है. तो मैंने कहीं 329 रुपीज़ पर यहाँ पर एंट्री लिया. 330 से इट वेंट टू अराउंड 250. तो 330 माइनस 250 विच इज़ अराउंड 80 रुपीज़. तो मेरा 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस या 30 50 वॉटेवर मेरा नेकेड में हिट हो जाता, तो मेरा ऑलरेडी इतना लॉस हो जाता. बट फ्रॉम 330
I exited around 392. At the same time I sold this call. So मेरा यहाँ पर 43 रुपीज़ का लॉस हुआ एंड मुझे यहाँ पर 63 का प्रॉफिट हुआ. तो नेट आई गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज़ इन द स्प्रेड. द बेस्ट थिंग इज़ कि बैंक निफ्टी वोलेटाइल होने के बाद भी मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बिकॉज बुल कॉल स्प्रेड में योर लॉस एंड प्रॉफिट इज फिक्स्ड एंड यू डोंट हैव टू पुट अ स्टॉप लॉस. So this is the same chart and this is how it went. So 329 से लेके तो it went to 460 levels and here from 162 it went to 248 rupees. It closed at this price. So in bull call spread I don't have to do anything. I can just buy and hold it above my level. So this is how Bank Nifty moved in 1 minute chart. So basically वो पहले बैंक निफ्टी मेरी लेवल से 120 पॉइंट्स का नीचे मूवमेंट दिया एंड आफ्टर विच इट वेंट अप अराउंड 180 पॉइंट्स. सो दिस वाज माय ट्रेड. सो मैंने 36,000 का ऑप्शन बाय किया. मैंने ये बाय किया एंड 36,300 का मैंने सेल किया एंड आई एग्जिटेड द ट्रेड इन from 208 to 230. So I exited the trade in 22 minutes only. So you can use bull call spread in intraday also. And अगर market volatile है तो भी आपका stop loss hit नहीं होगा. So I bought it at 329 and sold it at 392 and this is 36,300 not 400. So I received 63 points and I lost 43. So net in a lot size of 25 I made around 500 rupees approximately. So now why should you use spreads? What is the reason? So बैंक निफ्टी का ये 1 minute का चार्ट है. So 1 minute के चार्ट में if you see this is 1st of December. तो बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद लुक एट द वे इट मूव्स. तो बैंक निफ्टी बहुत ही वॉलेटाइल होता है. तो दिस इज़ 36,150 लेवल्स. तो ये 36,150 से इट वेंट टू 35,975 एंड दैट टू इन अ मैटर ऑफ 3 to 4 मिनट्स. तो बैंक निफ्टी इज़ वेरी वेरी वॉलेटाइल. तो अगर आपको ये वॉलेटिलिटी में आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होने देना है एंड यू आर इफ लेट्स से you are bullish here and you entered a trade. So let's see what happened. तो पहले वो नीचे आने के बाद it hit your stop loss and then it again went up, then it again came down and उसके बाद it started going up. So if you were in a bull call spread तो आपका SL hit नहीं हुआ होता, बट अगर आपने naked option buy किया है तो वो आपका SL हिट करेगा एंड फिर वो ऊपर जाएगा. सो अगर आपको ये वॉलेटिलिटी नहीं पसंद है तो यू कैन डिसाइड अ लेवल एंड वो लेवल पे यू कैन गेट इनटू अ स्प्रेड. तो अगर आप एक स्प्रेड में एंटर करते हैं तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द इंट्राडे वॉलेटिलिटी. सो दिस इज द चार्ट टिल 12:30 PM. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द सेकेंड हाफ. तो सेकेंड हाफ में इफ़ यू लुक एट दिस 1 minute कैंडल तो बैंक निफ्टी पहले 129 पॉइंट्स ऊपर गया, नेक्स्ट कैंडल में 195 पॉइंट्स नीचे आया, देन अगेन नेक्स्ट 2 minutes में इट वेंट अप 101 पॉइंट्स, अगेन 75 पॉइंट्स, 94, 95. सो 100 point move in a single minute is normal for बैंक निफ्टी. सो अगर आपका 30 to 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है तो इट विल ईजिली हिट योर स्टॉप लॉस एंड यू कैन लूज दैट मनी फ्रॉम 750 to 1250 इन अ सिंगल लॉट. तो इफ़ अगर आपको ये वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है एंड स्टिल यू वांट टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी एंड मेक सम प्रॉफिट्स, सो बुल कॉल स्प्रेड इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. नाउ लेट्स सी
this is a close up chart, so you can look at the movements.